تم کتنی عجیب باتیں کرتے ہو کوکن. جب تم بولتے ہو تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تمہاری آواز چڑھتے ہوئے نشے کی بڑھتی پھیلتی دائرے بناتی ہوئی موجوں کی طرح میرے سارے وجود پر چھا جائے گی، جیسے میں اس آواز میں گم ہو جاؤں گی. میں، میری روح، میری ساری کائنات. میں تمہاری باتیں نہیں سننا چاہتی کوکن، نہیں سننا چاہتی. تم اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو تم تو مجھے خاموش رہنا چاہیے. ہاں، خاموش اور بے حس و حرکت، پتھر کے اس مجسمے کی طرح جو میرے ڈرائنگ روم کے آرائش کے لیے لگایا ہے. دیکھو کتنا خوبصورت ہے اور کتنا قیمتی. میں اسے بہت پسند کرتی ہوں. کبھی کبھی تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، یا شاید وہ کوئی اور جذبہ ہو، کیونکہ میں محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں. تم ہنس رہے ہو، میں جانتی تھی تم مجھ پر ہنسو گے، مگر اس میں میرا کیا کوئی قصور نہیں. بانو نے مجھے محبت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا. بانو؟ ہاں، وہ آپ کو صرف دولت کے بارے میں بتاتی ہیں. تم ان پر طنز کر رہے ہو کوکن. میں صرف ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. بانو کے لیے دنیا میں دولت ہی سب کچھ ہے، دولت اور خاندان. انہیں اس پر فخر ہے کہ وہ ایک قدیم ایرانی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور لاکھوں کی جائیداد کی مالک ہیں. انہیں آپ سے، اپنی اکلوتی بانجی سے صرف اس لیے محبت ہے کہ آپ آگے چل کر ان کی دولت کی وارث بنیں گی. لیکن تم شاید ہمیشہ کی طرح کوئی چونکانے والی بات کہنا چاہتی ہو. حقیقت کے اظہار پر چونکنا ذہنی صحت مندی کی نشانی ہے. شاید، مگر میں چونکنا نہیں چاہتی. جب کبھی تم ایسی باتیں کرتے ہو تو اس سے میرے ذہن کو تکلیف ہوتی ہے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے تم میری دولت کا، میرے خاندان کا، ہر اس چیز کا جو زندگی نے مجھے دی مذاق اڑانا چاہتے. مگر تمہارے حسن کا نہیں. کوکن، کیا میں سچ مچ تمہیں خوبصورت لگتی ہوں؟ میں نے کبھی اپنے جذبے کو آپ سے چھپانے کی کوشش نہیں کی مس شیریں. مگر جذبہ جھوٹ بول سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارا جذبہ جس چیز کو دنیا کی سب سے بڑی خوبصورتی قرار دے وہ ایک معمولی کیمرے کی آنکھ میں صرف بدصورتی ہو. کیونکہ کیمرے کے پاس دل نہیں ہوتا. دل؟ ہاں، مگر نہیں. تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کیونکہ میرا دل یہی چاہتا ہے. کوکن، تم ایک شاعر ہو. تم بہت سی ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہو جن پر مجھے یقین نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کاش میں ان پر یقین کر سکوں، چاہے وہ صرف ایک ہی لمحے کے لیے کیوں نہیں. کیا میں کبھی یقین کر سکوں گی کوکن؟ کبھی یقین کر سکوں گی؟ بولو کوکن، جواب دو. بانو ادھر آ رہی. اچھا، میں جاتی ہوں. اوہ مسٹر کوکن، شیریں کہاں ہے؟ ارے تم جواب نہیں دیتے؟ پاگلوں کی طرح آسمان کی طرف کیا تک رہے ہو؟ یہ بالکنی آسمان کے مشاہدے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، سمجھے؟ میری طرف دیکھو، میری بات کا جواب دو. شیریں کہاں ہے؟ چاند آج بہت خوبصورت ہے. میں شیریں کو پوچھ رہی ہوں، چاند کو نہیں پوچھ رہی ہوں. دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بانو. تم نے اپنی لچر شاعری شروع کر دی مسٹر کوکن. میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گی، سمجھے؟ آپ شیریں کے ذوق کو اس طرح خراب نہیں کر سکتے. کسی کو چاند سے تشبیہ دینا ایک فرسودہ بات ہے. یہ تشبیہ اب صرف تیسرے درجے کے بازاری شاعروں میں مقبول ہے. ہاں، تم چاہو تو شیریں کو چاند کی جگہ چاندی کہہ سکتے ہو، مگر اس کے لیے طبیعت میں جدت چاہیے، ندرت چاہیے، جرأت چاہیے. اور تمہارے پاس
इस काफिये की कोई चीज नहीं है सिवाय हिमाकत के। अच्छा, मेरा ख्याल है अब तुम्हें रुखसत की इजाजत मांगनी चाहिए। और कल फिर आने की। हाँ? कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। क्या क्या कहा तुमने? मैं खूबसूरत लग रही हूँ? मैं? हाँ, बहुत कम औरतें इस उम्र में इतनी खूबसूरत लगती हैं। हाँ, शायद, लेकिन तुम ठीक कहते हो। मुझे याद है, आज से बहुत पहले, जब दुनिया इतनी बूढ़ी नहीं थी, मुझसे किसी ने ऐसे ही अल्फाज कहे थे, बेमाने मगर खूबसूरत अल्फाज। वो भी तुम्हारी तरह एक शायर था, उसकी बातों में न जादू था। जब वो बात करता था तो मुझे महसूस होता था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। कौन था वो? मुझे उसका चेहरा याद नहीं, और उसका नाम भी। आप उसे याद करना चाहती हैं? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी का पहला ख्वाब उसी के साथ देखा था। उसने मुझसे कहा था, हम दोनों मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे, एक ऐसी दुनिया जिसमें मोहब्बत होगी, मोहब्बत। मगर नहीं, मैं उसकी बातें याद नहीं करना चाहती। मोहब्बत कोई चीज नहीं है, मोहब्बत कोई चीज नहीं है। बानू, जाओ जाओ, चले जाओ। मुझे अफसोस है, तुमने मुझे मेरी कमजोरी के लम्हे में देख लिया। मगर तुम्हें याद रखना चाहिए, मैं सर कैकाउस की बेटी हूं, और जब मेरे बाप ने मुझे खबर दी थी कि उस बेवकूफ शायर ने मेरी मोहब्बत में खुदकुशी कर ली, तो मैं रोई नहीं थी, समझे? और याद रखो, शीरी से भी तुम्हें यही तवक्को रखनी चाहिए। हाँ, इसके बाद भी अगर तुम यहाँ रोजाना आना चाहते हो तो आ सकते हो। जाओ। चला गया झूठे ख्वाबों का फकीर व्यापारी। ओह शीरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। लो, ये खत तुमने देखा है? किसका खत है? मिस्टर शाहपुर का। तुम चाहो तो इसे पढ़ सकती हो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। उनका खत भी उनकी बातों की तरह खुश्क और बेरंग होगा। वो कारोबार के सिवा और कोई बात भी नहीं करते। हाँ, या आपका हुक्म तो मैं उसे पढ़ सकती हूँ? नहीं, मैं समझती थी तुम्हें दिलचस्पी होगी। अब तुम इतनी छोटी नहीं रही कि तुम्हें हर बात का हुक्म देना पड़े। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। आप तो नाराज हो गई। लाइए मैं पढ़ लूं। ओह, खुसरो विलायत से वापस आ गए? तुम्हें खुसरो याद है? हाँ, मगर बहुत धुंधला धुंधला। शायद हम दोनों उम्र की किसी ऐसी मंजिल में मिले थे जब जाती हुई दुनिया जा रही थी। शायद मैं उसे पसंद करती थी या वो मुझे पसंद करता था। मुझे कुछ ठीक तरह याद नहीं। हाँ, अलबत्ता ये झगड़ा जरूर याद है कि हम दोनों में से कौन किसे पसंद करता है। तुम्हें पसंद करता था। हो सकता है, मगर अब तो 5 साल विलायत रहकर आए हैं। अब तो शायद उन्हें भी मेरी कोई बात याद नहीं होगी। लेकिन आप उन्हें बुला रही हैं ना मेहमान? सोच तो रही हूँ, लेकिन जी, मैं नहीं चाहती कि मिस्टर शाहपुर मेरी दावत का कोई और मतलब निकालें। बहुत दिनों की बात है जब उन्होंने खुसरो के बारे में मुझसे कुछ कहा था। हो सकता है कि वो ये सोचें कि मैं दावत के जरिए उसकी याद दहानी कराना चाहती हूँ उन्हें।
मैंने उनसे शीरीन के बारे में बात की थी मिस्टर फ्रामर्स। जी शीरीन उनकी भांजी है, जी उनकी सारी जायदाद की वारिस है। जी। शीरीन और खुसरो की शादी। माफ कीजिएगा मिस्टर शापर। कोई बात नहीं, काश मैं सिर्फ बात करके न रह जाता। मुझे खुसरो के विलायत जाने से पहले तमाम बातें तय कर लेनी चाहिए थी। दुरुस्त। लेकिन मैंने अपनी हिमाकत से पिछले साल इस मामले पर कोई बात नहीं की। जी। और अब मुझे ये भी यकीन नहीं है कि बानो इसका तस्करा पसंद भी करेंगे या नहीं। माफ कीजिएगा मिस्टर शापर। कोई बात नहीं, मगर क्यों, आपको यह अंदेशा क्यों है कि बानो को यह सिलसिला जिम्मेदारी नागवार गुजरेगी? आप मामले की नजाकत को नहीं समझ रहे हैं मिस्टर फ्लामर्स। जी। मैंने जिस वक्त बानो से शीरीन के बारे में बात की थी, उस वक्त मेरी हैसियत उनके बराबर की थी। बानो जानती थी कि शाहपुर का कारोबार सारी दुनिया में फैला हुआ, जी। और ये कि इन दोनों खानदानों का संबंध उनके लिए एक नई तरक्की का जरिया बन जाएगा। जी। मगर अब हालात बहुत बदल चुके हैं मिस्टर फ्रामर्स। मेरा कारोबार आधा भी नहीं रह गया। माफ कीजिएगा मिस्टर शापर। कोई बात नहीं, मगर मेरे ख्याल में आपके कारोबार का राज अब मेरे सिवा और किसी को नहीं मालूम, यहाँ तक कि खुसरो को भी इस सूरत में, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कोई बात नहीं, आपका ख्याल सही है। जी। मगर कमजोर आदमी कभी कभी बेसबब भी डरता है। जी। इसके अलावा मुझे सबसे बड़ा अंदेशा खुद खुसरो की तरफ से है। जी। मैंने साहबजादे से शादी का तस्करा किया। कोई बात नहीं, तो वो लगे अपनी शर्तें पेश करने। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा चाचा जान जिससे मेरी बेतकल्लुफी न हो, जिसे मैं पसंद न करता हूँ, जिससे मुझे मोहब्बत न हो। गोया शादी साहबजादे के नजदीक मोहब्बत का खेल है। नौजवानी में सबके ख्याल ऐसे ही होते हैं मिस्टर शापर। मैंने उससे शीरी का नाम लिया। जी। मुझे उम्मीद थी शीरी का नाम सुनकर वो तैयार हो जाएगा, जी। क्योंकि वो शीरी को बहुत अच्छी तरह जानता है जी। और कभी पसंद भी करता था। जी। मगर साहबजादे फरमाने लगे, वो तो बचपन की बात थी चाचा जान। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं मिस्टर शापर, मैं खुसरो से बात करूंगा। मुझे उम्मीद है वो हालात को खुद समझ जाएगा। उसे जरा मेरे पास भेज दे। आओ बेटे, आओ आओ बेटे। इतना शदीद हफ्स है, आप यहाँ अंदर कमरे में क्यों बैठी हुई हैं? आइए ना बात। नहीं भैया, शाम बहुत खूबसूरत है, किसी सामनी सिलोनी हसीना के अवलीन वादे की तरह। आइए ना अंकल, बाहर चलिए। बेटे, मुझे तो बहुत जुकाम बहुत सख्त है, फिर बाहर की फजा हम जैसे बूढ़ों को वैसे भी कब साजगार होती है। बैठ जाओ बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें कर। छोड़िए भी अंकल, जरूरी बातें करने के लिए चाचा जान क्या कम है। मैं थक गया हूँ, उकता गया हूँ जरूरी बातों से। मुझे कभी ये गुमान भी नहीं था कि अपने घर पहुंचकर मेरी जिंदगी इतनी महदूद हो जाएगी, महदूद और बेमानी। कम से कम मुझे तो पैसे जोड़ने के इस काम में कोई मानी नजर नहीं है। मेरा ख्याल है तुम अभी यहाँ के माहौल से मायूस नहीं हुए। सवाल माहौल का नहीं, जहनियत का है। जी। जिंदगी के लिए दौलत कमाना मेरी समझ में आता है, मगर दौलत कमाने के लिए जिंदगी बसर करना, ये बात किसी तरह समझ नहीं आती। चाचा जान तो ये चाहते हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद बना लूं, कारोबार में तरक्की। जी। यहाँ तक कि उनके नजदीक मुझे शादी भी इसी मकसद के लिए करनी चाहिए। ताज्जुब है, मुझे तो हमेशा से इस बात का यकीन था कि तुम शीरी को पसंद करते। मगर इसलिए नहीं अंकल कि वो बानो की जायदाद की वारिस है। फिर भी तुम उसे पसंद करते हो ना। मुझे उसकी दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं मर जाऊंगा मगर शीरी से उस वक्त तक शादी नहीं करूंगा जब तक कि मुझे ये यकीन न हो जाए कि मेरे और शीरी के दरमियान मोहब्बत के सिवा और कोई चीज नहीं है। जायदाद, दौलत, खानदान, कारोबार, कोई चीज नहीं। ठीक। मैं कोई इकरार करने से पहले शीरी से मिलना चाहता हूँ, दुरुस्त, ताकि मुझे उसके ख्यालात का अंदाजा हो सके। जी। ताकि मैं मालूम कर सकूं कि वो मुझे एक इंसान की हैसियत से कितना पसंद करती है। ठीक। अंकल, चाचा जान शायद मुझसे नाराज हैं, आप उन्हें मेरी तरफ से समझा दीजिए ना, उनसे कह दीजिए ना। मैं जरूर समझा दूंगा बेटा। खुसरो, चाचा जान, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जिद पूरी हो जाए।
हम लोग अब बूढ़े हो चुके हैं बानो। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। नौजवानों को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि हम लोग क्या सोचते हैं, किस तरह महसूस करते हैं, और हम भी उनसे पूरा इंसाफ नहीं कर सकते। हमारे लिए बेहतरीन रास्ता यही है कि हम उनके रास्ते से हट जाएं और उन्हें अपनी दुनिया खुद बनाने दें। मेरा ख्याल है, माफ कीजिएगा मिस्टर शाहपुर, खुसरो से आपको कोई बहुत तल्ख तजर्बा हुआ है। खुसरो की बात नहीं है बानो, खुसरो तो सिर्फ एक नमूना है, देगची का एक चावल। मगर वो देगची आप ही की पकाई हुई है। और मैं बुरा बावर्ची नहीं हूँ। इससे कौन इनकार कर सकता है मिस्टर शाहपुर। पुराने खानदानों में अब रह कौन गया है? एक आपका खानदान है, एक हमारा खानदान है। इसीलिए पुरानी रिवायात को कायम रखने की जिम्मेदारी हम ही लोगों पर है। मिस्टर शाहपुर, आपको मालूम है शीरी मेरी भांजी है, लेकिन दुनिया में किसी माँ ने भी अपनी बेटी की परवरिश इस तरह नहीं की होगी जिस तरह मैंने शीरी की तरबियत की है। बेशक बेशक। मैं कभी एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोच सकती कि शीरी को इस तरह आजाद छोड़। मेरा मतलब ये नहीं था बानो, इससे तो मैं भी कभी पसंद नहीं करूंगा, लेकिन हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं बानो। शीरी आपकी भांजी है और खुसरो मेरा भतीजा है। इन दोनों की मंगनी इनके मरहूम वालिदैन ने की थी। उनकी वसीयत के मुताबिक तो ये शादी होनी ही चाहिए। और वो होगी। काश मैं भी इतने ही यकीन से कह सकता, लेकिन खुसरो के ख्यालात, नौजवानों के ख्यालात कच्ची मिट्टी की दीवार होते हैं मिस्टर शाहपुर। उन्हें इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। शादी इनफरादी मसला नहीं है, ये खानदान का मामला है। इसमें जाती ख्यालात और जज्बात कोई हैसियत नहीं रखते। मगर खुसरो इस तरह नहीं सोचता बानो। साहबजादे 5 साल विलायत क्या रह कर आए कि मिजाज ही कुछ और हो गया है। आप बुरा न मानिएगा बानो, शादी से पहले मुलाकात होनी चाहिए, कुछ दिन साथ रहने का मौका मिलना चाहिए, आदत मिजाज से वाकफियत होनी चाहिए। ये नामुमकिन है। हमारी खानदानी रवायात। देखिए बानो, ये कोई गैरों का मामला नहीं है। खुसरो और शीरीन दोनों का ताल्लुक ऐसे खानदानों में से है जिनके ताल्लुकात पुश्तों से कायम है। रईसों के बहुत कम खानदान ऐसे हैं जिनमें इतने गहरे ताल्लुकात रहे हों। तो फिर इन शराइत का क्या मतलब हुआ? जिद है बानो, सिर्फ जिद। दिमाग में एक बेहुदा ख्याल बैठ गया और मकड़ी की तरह जाला तन रहा है। इसकी कोई अहमियत नहीं। हमारी जरा सी मसलिहत अंदेशी बिगड़ते हुए काम को बना सकती है। हमें जिद का जवाब जिद से देने के बजाय थोड़ी सी ढील छोड़नी चाहिए। तो फिर आपने क्या सोचा है? मेरा ख्याल है खुसरो को आप कुछ दिन के लिए अपने यहाँ मेहमान बुलाए। कैसी बातें करते हैं आप? इसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब कुछ नहीं बानो, सिर्फ वक्त की मसलिहत। अजीब सी बात लगती है। शीरी को मैंने जैसी तरबियत दी है वो उसके लिहाज से लग़्ज़िश का कोई इम्कान नहीं है बानो। और खुसरो भी आप ही की औलाद है। अच्छा, लेकिन मैं चाहती हूँ शीरी को इन तमाम बातों की कोई खबर ना हो। आप खुसरो के बारे में उससे कोई बात नहीं करेंगे। सब बातें मामूली अंदाज में तय होनी चाहिए। शीरी को ये गुमान भी नहीं होना चाहिए कि खुसरो के यहाँ आने का कोई खास मकसद। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल होना भी यही चाहिए। झूठ, बिल्कुल झूठ, हम नहीं मानते। अच्छा, हमारे सर की कसम खाइए। मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं, और शायद इसकी जरूरत भी नहीं है। मैंने तुम्हें याद किया तो ये अपने दिल की बात थी, इसका तुमसे कोई वास्ता न था। बहुत खुदगर्ज हैं आप। क्यों? इसमें खुदगर्जी की क्या बात है? बात कैसे नहीं? आपको क्या मालूम हमें कितनी खुशी हुई है सुनकर कि आप हमें विलायत जाकर भी नहीं भूले। मगर तुम मुझे जरूर भूल गई थी। क्यों भूल गई थी ना? बिल्कुल भूल गई थी।
बात पर चुप हो गए। अच्छा सच सच बता दे, बिल्कुल तो नहीं भूले थे? कभी कभी याद भी आती थी, थोड़ी थोड़ी। क्या सोच रहे हैं आप? एक बात पूछो तुमसे, ये कोहकन साहब कौन है? कोकम? अच्छा बता दूं, आप जलेंगे तो नहीं? तो ये बात है। बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं, इतनी अच्छी कि बस मेरा जी चाहता है कि घंटों सुनती रहूं। ओह वो आ गए, आप मिलेंगे? क्यों? ओहो क्या हो गया आपको? आती हूँ। आइए चलिए मेरे साथ, वो भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। लीजिए वो खुद ही आ गए। आप कोकन? जी तो माफ कीजिएगा मिस शीरी, मुझे मालूम नहीं था कि आप इतनी मसरूफ। नहीं नहीं, बहुत अच्छे वक्त आए हो, हम अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे। इनसे मिलो, ये हैं मेरे अजीज तरीन मेहमान, मेरे बचपन के साथी और दोस्त खुसरो परवेज। बहुत खूब। और ये हैं कोकन, शायर, अदीब, फनकार और मुस्तकबिल की तारीख के एक नामवर किरदार। मेरा ख्याल है आप दोनों हजरात को एक दूसरे से मिलकर सचमुच बहुत खुशी होनी चाहिए। अरे अरे आप लोग तो मालूम होता है कि एक दूसरे को देखकर मबहूत हो गए। बैठो कोकन। जी हाँ, लेकिन माफ कीजिएगा खुसरो साहब, मैं फिर किसी वक्त हाजिर रहूंगा। इस वक्त मुझे एक जरूरी काम से जाना है तो गुस्ताखी, मगर देखना, खुदा हाफिज। ओहो, आप भी कितने अजीब आदमी। अजी आप खुसरो परवेज साहब, इतनी रकाबत अच्छी नहीं होती। पागल ना बनो, इतनी जरा सी बातों पर संजीदा नहीं होते। देखो इधर, ए हजरत। कौन? कोकन? अरे कब आए तुम? और यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? ओहो, मालूम होता है तुम्हें भी कुछ जुनून हो गया। अजी जनाब शायर साहब, कुछ इरशाद फरमाइए या कुछ फिक्र सुखन फरमा रहे हैं? कोकन क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ मुझे तुम्हारा कीमती वक्त खराब करने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओह, ये किसी नई नज्म का मौजू है? तुम मेरी बातों को हमेशा शायरी ही क्यों समझती हो शीरी? फिर शायर की बातों को और क्या समझूं? हाँ ठीक है, तुम्हें सिर्फ मेरी शायरी से दिलचस्पी है। जी नहीं, थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी बातों से भी है, मगर मुझसे नहीं। ओहो, तब हुजूर सफात की बजाय जात की तरफ बुलाना चाहते हैं। इतना मजाक न उड़ाओ मेरे जज्बात का, मैं पहले ही से बहुत कुछ दुख उठा चुका हूँ। जाओ, खुसरो तुम्हें बुला रहे हैं। यम किस दिल से कह रहे हैं? शीरी वो मैं वाह खुसरो, अभी तुम्हारी बातें हो रही थी, बैठो। हाँ, मैं अभी आता हूँ, माफ कीजिएगा कोकन। सुनो तो। क्या शीरी, तुम गई क्यों नहीं? आपसे डर जो लगता है। हाँ, इतना ख्याल है तुम्हें मेरा? मजबूरी है, वरना हमारे शायर साहब खफा न हो जाएं। शीरी अब तो खुश हो गए ना? इधर देखिए, देखिए ना। तुमने मुझे पागल बना दिया। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम आखिर चाहती क्या हो। क्या मतलब है तुम्हारा इन बातों से? कभी बातों ही बातों में मुझसे इतना करीब आ जाती हो जैसे हम दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे हों।
कभी इतना दूर चली जाती हो कि सदियों का फासला भी कम मालूम होता है। और तुम हंस रही हो जैसे ये सब कुछ गलत है, झूठ है, या मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूँ। और आपका ख्याल है कि मैं आपसे खेल रही हूँ? तो फिर ये सब कुछ और क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत, मोहब्बत। तुम इस हौलनाक खेल को मोहब्बत कहती हो? तुमने हंसकर मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में मुझे अपना बना लिया है, और जब मैं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे करीब आता हूँ तो बेइतनाई के कचोकों से तुमने मेरे दिल को छलनी कर दिया। कभी एक मोहब्बत आमेज निगाह से पास बुला लिया, कभी नफरत की जहर भरी हंसी से दूर भगा दिया, रोया तो रोने ना दिया, हंसा तो हंसने ना दिया, नींद आई तो जगा दिया। क्यों आखिर क्यों? फिर तुम कभी मेरी किसी शिकायत का जवाब भी नहीं देती हो। हाँ, और ऐसी बातों का मेरे पास कोई जवाब भी नहीं। शीरी सुनो, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस तरह अपनी मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाने दूंगा, कभी नहीं। पागल ना बनो, मुझे किसी बात की कोई सफाई नहीं करनी। तुमने अगर मेरे बारे में यही सब कुछ सोचा है तो ये सब कुछ तुम्हारा हक है। किसी आईने में अगर मेरी शक्ल इतनी मस्त नजर आती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे लिए सिर्फ यही इत्मीनान काफी है कि मैं ऐसी नहीं हूं, और बस। शीरी, कितनी सर्द महर हो तुम। सुनो, मुझसे सिर्फ एक बार कह दो कि मैं गलत सोच रहा हूँ। सिर्फ एक बार मुस्कुराकर मुझे उस तरह देख लो जिस तरह पहली मुलाकात में देखा था। फिर मैं ये समझ लूंगा कि मैं सिर्फ अपनी ख्याली परछाइयों से डरता रहा हूँ। कह दो शीरी। हेलो गोकुल, अरे उधर कहाँ जा रहे हो? ठहरो, मैं भी आ रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे तन्हाई में बात भी नहीं करना चाहती। तुम्हें पछताना पड़ेगा शीरी, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो ये है मेरी मोहब्बत का जवाब। मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, अभी और इसी वक्त। हाँ, इसके सिवा और कोई इलाज भी तो नहीं है। चचा जान कहते थे, वो तुझे एक नजर देखने के लिए बेताब है। हाँ, वो बेताब थी, मगर मुझे दीवाना बनाने के लिए। खुदा हाफिज शीरी, अपनी अव्वलीन मोहब्बत के संजाम को मैं हमेशा याद रखूंगा। खुदा हाफिज। हाँ, आज मैं तन्हा हूँ। खुसरो चले गए। देखो चांद कितना उदास है। मगर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुमने मुझे खास तौर पर बुलाया है। आज तुम्हारी आंखें कितनी मेहरबान हैं। बाहर का मौसम भी शायद यूं ही अचानक आता है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कोकण, मैं जानती हूँ, मगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती। क्यों? यही ना? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। खुसरो, हवा का झोंका कितनी तेजी से गुजर जाता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। मोहब्बत भी। बानो कहती है मोहब्बत कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ा बंधन दौलत का होता है, घर का होता है, खानदान का होता है। बानो खुसरो को इसी बंधन में बांधना चाहती थी, मगर और बानो कहती है मुझे रंजीदा भी नहीं होना चाहिए। दुनिया में सिर्फ एक खुसरो नहीं है। शीरी अपनी तमाम दौलत, जायदाद और खानदान से हर कदम पर एक नया खुसरो ढूंढ सकती है। तो फिर वो खुसरो तुम क्यों नहीं बन जाते कोकण? मैं? आप? तुम हाँ? तुम ये क्या कह रही हो शीरी?
बानो की शर्त सिर्फ दौलत है, दौलत और मर्तबा। क्या तुम मेरे लिए इतनी दौलत नहीं कमा सकते? बानो तुमसे इनकार न कर सकेगी। मगर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा शीरी। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे हासिल करने के लिए हर कीमत पर दौलत मैं हासिल वादा करो। करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, बानो की शर्त पूरी करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। चोरी कर सकता हूँ, डाका डाल सकता हूँ, जुआ खेल सकता हूँ, मैं दौलत हासिल करूंगा। हर कीमत पर दौलत, जायदाद, मर्तबा। बानो की हर शर्त पूरी होगी तुम्हें हासिल करने के लिए, तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए। मैं अपनी रूह को शैतान के हवाले कर दूंगा। मुझे डर लगता है खुसरो, दिन रात की इतनी शदीद मेहनत से कहीं तुम बीमार न हो जाओ। कारोबार की तरक्की के लिए काम तो करना ही पड़ता है चचा जान। मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम खाना पीना सोना जागना सब कुछ तर्क कर दो। मैं जानता हूं बेटे, तुमने अपनी रूह में एक गम पाल लिया है, मगर औरत का गम औरत ही दूर कर सकती है। दुनिया में तुम्हारे लिए औरतों की कमी नहीं है, सिर्फ एक बार तुम हाँ कह दो। कैसी बातें करते हैं आप, मुझे तो किसी का भी ख्याल नहीं है। हाँ, अलबत्ता आजकल तबीयत काम पर ज्यादा माइल है। अरे आप फिक्र न कीजिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे दौलत चाहिए, हर कीमत पर दौलत चाहिए। दौलत कमाना इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझा है। दौलत कमाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। मुझे दौलत चाहिए, मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, फिर मैं अपनी मंजिल खुद ढूंढ लूंगा। मैं हर कुर्बानी दूंगा, मुझे सिर्फ तरीका बता दो, मैं अपनी हर चीज कुर्बान कर दूंगा। दौलत के रास्ते में तुम्हारी शराफत, इंसानियत एक पहाड़ की तरह खड़ी है। तुम इस पहाड़ को काट नहीं सकोगे, इस ख्याल को भूल जाओ। नामुमकिन है, नामुमकिन है। शीरी को हासिल करने के लिए मैं अपनी शराफत और इंसानियत को छोड़ सकता हूँ। मैं अपने रास्ते के हर पहाड़ को काट सकता हूँ। शीरीन, खुसरो को तुमने अपने हाथों से खो दिया और कोहकन का मुद्दत से कोई पता नहीं। मैं अब इंतजार नहीं कर सकती। न जाने कितने लोगों के पैगाम तुम्हारे लिए आए हैं। तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि तुम उनमें से किसे पसंद करती हो। अभी नहीं, सिर्फ चंद रोज, सिर्फ चंद रोज। शीरीन, ये तुम्हारे नाम का खत है। किसका खत है? शीरी, मैं बीमार हूँ। ये ठीक है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं था। कि मेरी मोहब्बत तुमसे इतना बदगुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदगुमानी खुद परस्ती से पैदा होती है और खुद परस्ती मोहब्बत के मनाफी है। लेकिन गलती इंसान ही से होती है। शीरी, क्या ये नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ एक बार मेरे पास आ जाओ? मुझे तसल्ली देने के लिए नहीं, सिर्फ मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं तुम्हारे सामने आखिरी बार अपनी गलती का एतराफ कर सकूं। वरना मेरी रूह कभी चैन नहीं आएगा। शीरी, आ जाओ, सिर्फ एक बार आ जाओ। मैं आ रही हूँ खुसरो, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ।
तुम आ गई शीरी। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। शीरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ नहीं सका। न जाने क्यों मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे तुम मुझसे खेल रही हो। मोहब्बत के तसब्बुत से जहन्नम का अज़ाब बेहतर है। मैं उस अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सका और तुम्हें छोड़कर चला गया। शीरी, बरसों मैंने अपने आप को धोखा देने की कोशिश की है, जैसे मैं तुम्हें भूल गया हूं। मैंने अपनी रूह चचा जान के हवाले कर दी, क्योंकि वो उससे सोना बनाना चाहते थे, और अपना जिस्म रंगीन धोखों के सुपुर्द कर दिया, जिन्हें दुनिया ऐश और इशरत कहती है। मगर शीरी, तुम जानती हो ये सब कुछ कितना बेमसरफ था। खुसरो, मुझसे कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। मुझसे कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरे खुसरो। ये जिंदगी कितनी अजीब है शीरी। तुम्हें मालूम है शीरी, जब मैं तुमसे आखिरी बार मिला हूं, उस वक्त मेरे क्या ख्यालात थे। मैं समझता था तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम्हें उस शायर से मोहब्बत है, कोकन से। कितनी बेवकूफी की बात थी, है ना? मैं कह नहीं सकती शीरी। बड़ी बदगुमान हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि उस वक्त मुझे ये मालूम ही नहीं था कि मोहब्बत किसे कहते हैं। लेकिन तुमने कभी कोकन के लिए तो इस तरह महसूस नहीं किया ना, जिस तरह मेरे लिए करती थी। हाँ, तो वो तुम्हें पसंद था। उसकी बातें मुझे दीवाना कर देती थी। तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है? तो फिर ये सब खेल क्या है? तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, मगर मेरी मोहब्बत तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे कभी कभी यूं महसूस होता था जैसे 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 मेरे सीने में दो दिल है। खफा हो गए? मैं पागल हो जाऊंगा शीरी, मैं दीवाना हो जाऊंगा शीरी। खुसरो, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि जब मैंने ये जाना कि मोहब्बत किसे कहते हैं, अपनी रूह की गहराइयों में तुम्हारे से और किसी को ना पाया? बोलो, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? हाँ, मगर शीरी, खुदावंदा, रूहों के राज तेरे सिवा कौन समझ सकता है? मैं आ गया हूँ शीरी। कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ तुम्हें। कितना अजीब है ये सब कुछ, है बिल्कुल एक ख्वाब की तरह। कल तक मैं एक कंगाल आदमी था, मगर अब तो शायद बानो भी मुझे पसंद करेंगी। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक शायर भी उनकी तरह लखपति बन सकता है। मगर ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा है। तुम क्या सोच रही हो शीरी? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कोकन की आवाज है। हाँ, शायद मैं पहले से बहुत बदल गया हूँ। जिंदगी इसी का नाम है शीरी। 5 साल पहले मुझे जिंदगी की सिर्फ 2 चीजों का इल्म था, शायरी और तुम्हारी मोहब्बत। मगर तुम्हें ये सुनकर ताज्जुब के साथ खुशी होगी कि अब मैं पहले की तरह ना तजर्बेकार नहीं रहा। अब मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, बहुत कुछ। मुझे यकीन है कि जिंदगी की कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिस पर इंसान काबू ना पा सके। खुदा ने हर पहाड़ के लिए एक तेशा बनाया है। अब ये इंसान का अपना अपना ज़र्फ है कि वो उस तेशे से बेसुतून काटता है या अपना सर फोड़ लेता है। कोकन, मुझे खुशी है कि तुम जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके आए हो। मगर क्यों? रुक क्यों गई? जिंदगी बहुत बदल गई है। कोकन सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी। मैं समझा नहीं। तुम खुसरो से नहीं मिले? खुसरो? हाँ, हम दोनों ने अपनी गलती महसूस कर ली। खुसरो और मैं एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हमने एक दूसरे से शादी का फैसला किया। मगर मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें जिंदगी के एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। नहीं,
नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं मान सकता। मैं जानता हूं तुम हमेशा की तरह मुझसे मजाक कर रही हो, छेड़ रही हो मुझे। क्यों क्यों शीरी, यही है ना? शीरी, मुझसे कह दो कि ये सब कुछ सिर्फ मजाक है, कह दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। शीरी, मुझे भूल जाओ कोकन, ये समझ लो कि मैंने जो कुछ कहा था उसका मकसद सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाना था। जिंदगी को बेहतर बनाना था। कौन? कोकन? हाँ, वही है। मगर इसकी हालत क्या हो गई है? बेहतर जिंदगी। दोस्तों, मुझे मुबारकबाद दो, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, बहुत बड़ा आदमी, इतना बड़ा कि अब मुझे मोहब्बत की जरूरत नहीं रही, शीरी की जरूरत नहीं रही। मेरे लिए सिर्फ दौलत काफी है। दौलत, दौलत भी वो जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। शायरी, जिंदगी, इंसानियत, मैंने उसके लिए अपनी जिंदगी का मकसद बदल डाला। मैं भूल गया कि मैं फनकार हूँ। मेरा फन दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, मोहब्बत से भी बड़ी। शीरी कहती है मुझे भूल जाओ, क्यों समझ लो कि मैंने तुमसे जो कुछ कहा था वो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कहा था। बेहतर जिंदगी। और वो अब खुसरो से शादी करेगी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। खुसरो से, जो अपनी दौलत के गुरूर में उसकी मोहब्बत को ठुकरा के चला गया था। खुदा बंदा, जिंदगी का ये खेल क्यों रचाया, क्यों रचाया? हमारे खानदान के लिए इससे बड़ी खुशी का वक्त कभी नहीं आएगा बानो। बेशक बेशक, लेकिन शादी भी ऐसी होनी चाहिए मिस्टर शाहपुर कि हर लोगों के चर्चा रहे। मेरे पास जो कुछ है खुसरो का है। रहेगा आपका मामला तो मुझे यकीन है कि आप भी शीरी को उसके हक से महरूम नहीं रखेंगे। जाहिर है मिस्टर शाहपुर, मेरा भी शीरी के सिवा और कौन है। मेरा ख्याल है बानो, जहेज में ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत नहीं। आपकी जायदाद का निस्फ मगरिबी हिस्सा काफी होगा। वैसे जेवरात और जवाहरात में आपकी मर्जी है कि जो जी चाहे करें। अलबत्ता दूल्हा के लिए कोठी और कार की रस्म हमारे खानदान में कदीम है, अरसे से चली आ रही है। आप फिक्र न कीजिए मिस्टर शाहपुर, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन मिस्टर शाहपुर, शीरी भी सर कैकाऊस की नवासी है। उसकी रोनुमाई उसकी हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। कम अज कम 3-4 लाख की जायदाद तो आपको देनी ही पड़ेगी। खैर ये तफसीलात तो बहरहाल तय होती रहेंगी। मेरा ख्याल है कि अगर आपको इतराज न हो तो शादी का ऐलान इसी महीने की किसी तारीख को कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या इतराज हो सकता है। लीजिए। तुम आ गए कोकन। मेरे शायर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, आज मेरी शादी की रात है। कोकन देखो, आज मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना? हाँ, हाँ, जिंदगी की तरह। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। दीवाना बना दोगे मुझे। और खुसरो कहेंगे मुझे तो हर एक से ऐसी बातें करने में मजा आता है।
मगर मैं जानती हूँ जलते हैं वो दिल ही दिल में, उन्हें मुझसे मोहब्बत है ना। मोहब्बत? मगर तुम उन्हें अपनी बेईमानी से मत नापना, उनकी मोहब्बत इतनी ऊंची नहीं है, वो मुझे मेरे हर रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ तुम हो मेरे शायर। क्यों बोलो, तुम मुझसे मेरे हर रूप में मोहब्बत करते हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? और क्या है इन आंखों में? आज इतनी गहरी क्यों लग रही है? गहरी और पुरस्कार, जैसे ये जिंदगी और मौत के राजों को जानती हो। मुझे इस तरह ना देखो, मुझे आज तुम्हारी आंखों से डर लग रहा है। तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है कोकन? क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे कुछ हो गया है शीरी, मेरा दिल डूब रहा है। नहीं, घबराओ नहीं। मरने वाले के सामने घबराया नहीं करते शीरी। नहीं, तुमने क्या कर लिया कोकन? चढ़ते हुए नशे की बढ़ती फैलती दायरे बनाती हुई मेरा जहर मेरी रगों में दौड़ रहा है। तुम्हें क्या? मोहब्बत के जायरे की तरह। कोकन, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने ये क्या कर दिया? मैं जा रहा हूँ शीरी। नहीं, जा रहा हूँ जिंदगी से मारा, दूर मोहब्बत से दूर, नफरत से तुम्हें पसीने आ दूर, मौत की आगोश में तुम कांप रहे हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान जिंदगी एक पहाड़ की तरह फैलती। ऐसे न कहो और मेरे हाथ कमजोर थे और मेरे देश का मुकद्दर मेरे अपने खून से रंगीन होना था। तुम बैठ जाओ, मैं बैठ जाओ। कभी तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं बना, मगर मुझे अपनी हस्ती पर नाज था। फनकार का पुराना गुरूर। फिर यूं हुआ कि तुमने चंद लफ्जों के खिलौने देकर मुझसे वो नाज भी छीन लिया। नहीं, मुझ पर इतना सख्त इल्जाम न लगाओ, मैं मर जाऊंगी। तुम जानते थे मुझे खुसरो से मोहब्बत है, मैं मजबूर थी, मगर मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर नाज था। ठीक है कि मैंने तुमसे शादी का वादा किया था। मैं खुसरो को सजा देना चाहती थी, उन्हें बता देना चाहती थी कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, मगर ये सब कुछ धोखा था, झूठ था। नफरत भी कभी कभी मोहब्बत की सदाए बाज गश्त होती है। तुमने इस आर्जी नफरत के असल रूप को क्यों नहीं पहचाना? तुमने ये क्यों नहीं समझा कि मैं खुसरो से सिर्फ अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहती हूँ? मैं समझता था, मगर मुश्किल ये है शीरी कि मोहब्बत इंसान को समझने नहीं देती। खुदा मैं आ गया। कितनी खूबसूरत लग रही हो शीरी, आज हमारे मिलाप की रात है। मगर हवाएं जुदाई की गीत गा रही। शीरी, ओह ओकर, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मेरा आईना टूट गया। ओकर, ओकर, आज की रात कितनी हसीन है। ये मर गया है शीरी, मौत की तरह। ये मर गया है। खुश रहो, मुझे अपनी आगोश में ले लो। मौत की तरह सर्द है इसका प्यारा बदन। मगर
मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं जिंदा रहना। कितनी भयानक मौत! मौत से मावरा भी एक जिंदगी है खुसरो, और जहाँ जिंदगी है वहाँ तशनगी है, और जहाँ तशनगी है वहाँ जुए शीर, जुए जहर है, जुए खून है, जुए शीर है। खुसरो। एक साथ और गुजर गई, वक्त के बेकरार समुंदर में एक कतरा और गुम हो गया। जिंदगी सिर्फ एक थकन का नाम है, बढ़ती और फैलती हुई थकन, घड़ी की मुसलसल यकसां और रुकता देने वाली टिक टिक की तरह। जिंदगी का हर हंगामा सो जाता है, मगर घड़ी की आवाज जागती रहती है, यहाँ तक कि आवाज और सुकूत की सरहदें एक दूसरे में बदगम हो जाती है। कोकन अभी तक नहीं आया। कोकन वो अब नहीं आएगा।